ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اتنے عرصے بعد میری خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ پورے محلے میں خوشی سے مٹھائی بانٹوں۔ وہ شخص مجھے پہلے دن سے ہی پسند نہیں تھا۔ وہ مجھے پہلے دن سے ہی مشکوک لگتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے نیک چہرے کے پیچھے گھناؤنا چہرہ چھپا ہوا ہے۔ میں بس کسی طرح سے اس کا وہ چہرہ سب کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر آخر ایک دن میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس کی ویڈیو پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ سارے لوگ اس پر تھو تھو کر رہے تھے، اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت ہی سکون مل رہا تھا۔ یہی سب سوچتا ہوا میں اپنے گھر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا کہ اچانک ہی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر امام صاحب کھڑے تھے۔ اس کو وہاں پر دیکھ کر میرا دماغ غصے سے کھول گیا۔ میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس سے بات کرنا تو دور کی بات۔ میں نے اپنا رخ تبدیل کر دیا، دوبارہ آگے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اس کی بات سن کر یکدم ہی اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ برخوردار، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، بلکہ ساری دنیا کو صرف اور صرف تمہاری حقیقت بتائی ہے۔ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہیں کیا پتا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے اور تمہیں اس غلطی کی کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنی یہ دھمکیاں اپنے پاس رکھو، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم ایک گھٹیا انسان ہو، اور گھٹیا انسانوں سے خوفزدہ ہو کر میں سب کے سامنے مذاق نہیں بننا چاہتا۔ میں دوبارہ سے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اس بار میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے آواز بھی نہیں دی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی باتیں سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید میں نے غلط کر دیا ہے، مگر پھر جلد ہی میں نے اپنے ضمیر کو سلا دیا۔ اب دوبارہ سے وہی نفرت سر اٹھانے لگی تھی جو میرے دل میں اس امام کے لیے تھی۔ اس نفرت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس جیسے نیک لوگ پسند نہیں تھے۔ مجھے نیک لوگ ہمیشہ سے ہی دوغلے لگتے تھے، جبکہ یہ وہ انسان تھا جو مجھے ہمیشہ ہی پکڑ پکڑ کر نصیحتیں کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس کا حشر نشر بگاڑ دوں۔ ایک بار اسے میری کسی بات کے بارے میں پتہ چل گیا، اس نے سب لوگوں کے سامنے مجھے سمجھایا۔ اس دن سے میں نے اس کے ساتھ ضد باندھ لی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے دوغلے پن کے بارے میں جلد ہی سارے محلے والوں کو بتا دوں گا۔ اس دن کے بعد ہی میں اس کے پیچھے پڑ گیا۔ میں بس کسی طرح سے وہ موقع تلاش کر رہا تھا جس کے ذریعے میں اسے تباہ و برباد کر سکوں، اور پھر ایک دن مجھے وہ موقع مل بھی گیا۔ اب اس کی ویڈیو ہر جگہ پر پھیل رہی تھی۔ جیسے جیسے وہاں پر لوگوں کا ہجوم بڑھتا چلا جا رہا تھا، ویسے ویسے میری خوشی بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی، جبکہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس کی عزت اچھال کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں یہ بات بھی بھول گیا تھا کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم جتنا چاہیں کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور ہم جتنا مرضی کسی کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں، اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی اس بات کو چھپا نہیں سکتا۔ یہ باتیں مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی تھیں، جب میرے ہاتھوں میں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تب میں ہر وقت ہی روتا رہتا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا تھا، مگر مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سکون نام کی شے کا میری زندگی سے خاتمہ ہو گیا ہو۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ چھوٹی بہن بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا۔ میری بات سن کر اس نے اپنا روتا ہوا سر اٹھایا اور پھر کہنے لگی، بھائی وہ امی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس بار اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔
जिंदगी में पहली बार मैं उसे इस तरह से रोता हुआ देख रहा था। वो हमारी लाडली बहन थी। हमने कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे। उसकी कोई भी ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। आज वो पहली बार इस कदर शिद्दत से रो रही थी कि मुझे अपना दिल कटता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी बात सुनकर मैं बेचैन हो गया। मैंने उसे झंझोड़ा और कहा, पूरी बात बताओ, अम्मी कहाँ हैं? उसे वहीं छोड़कर मैं तेजी से कमरे के अंदर गया और अपनी अम्मी को तलाश करने लगा, मगर मुझे अम्मी कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ अब मेरी बहन बैठी ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी। मैं तेज़ी से भागता हुआ उसके पास गया और उसे कहने लगा, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है अम्मी को। अब उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। भाई, वो अम्मी तो... मैं जब से थोड़ा समझदार हुआ था तब से ही मैं गुनाहों में फंस गया था। छोटी सी उम्र में ही गलत संगत मिली थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। अम्मी मुझ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, बल्कि अम्मी तो किसी बच्चे पर भी तवज्जो नहीं देती थी। उनकी अपनी जवानी ख़त्म ही नहीं होती थी। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हर साल एक बच्चा पैदा करना था। मेरे 8 बहन भाई थे और मेरा नंबर 6 था। मुझसे 2 छोटी बहनें थीं, जबकि 3 बड़े भाई और 2 बहनें थीं। उन 5 की शादियां हो चुकी थीं और वो अपने घरों में आबाद थे और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। कभी कभार वो हम लोगों से मिलने के लिए आ जाते। चूँकि उनके साथ मेरा ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, इसी वजह से मुझे उनसे ज़्यादा मोहब्बत भी नहीं थी। मेरी अपनी छोटी बहनों से ज़्यादा बनती थी। अपनी छोटी बहनों से मैं बहुत मोहब्बत करता था, उनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता था। अब्बा की एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान थी। उसके अलावा उनके 3-4 स्टोर भी थे जो बहुत अच्छे चल रहे थे। हर महीने वहाँ से एक मोटी रकम आ जाती, जिससे ना सिर्फ घर का खर्चा चलता था, बल्कि उसके साथ साथ अम्मी हम बहन भाइयों को भी एक भारी रकम देती थी। अम्मी ने कभी हमसे ये भी पूछने की कोशिश नहीं की कि तुम लोग पैसे कहाँ पर लगाते हो। हम जब भी अम्मा से पैसे मांगते थे, अम्मा खुशी से हमें पैसे निकाल कर दे देती। और फिर इसी तरह से ऐसे हुआ कि सबसे पहले मैं सिगरेट के नशे पर लगा। मुझे सिगरेट की इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि उसके बग़ैर जीना ही दुश्वार हो गया था। एक बार ऐसा हुआ कि सिगरेट पर बैन लग गया। बहुत कम ही किसी को सिगरेट मिलते थे। हमारे इलाके में तो सिगरेट ख़त्म ही हो गए थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं पीते थे। उस रात मुझे बहुत तलब हो रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मुझे सिगरेट नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। ये वही रात थी जिस रात मेरा पहली बार उस मौलवी से सामना हुआ था। उसी रात ही मुझे उस मौलवी से नफ़रत हो गई थी। मैं बेहाल अपने घर की छत पर चक्कर काट रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कहाँ से सिगरेट का बंदोबस्त करूं। अपने दोस्त से इस बारे में बात की तो उसने साफ मना कर दिया। मुझे कहने लगा कि मेरे माँ बाप ने तुम्हारी तरह मुझे यूं आज़ाद नहीं छोड़ा हुआ, बल्कि वो मुझसे मेरे हर काम की खबर लेते हैं। मैं कहाँ पर जाता हूँ, क्या करता हूँ, किसके साथ मौजूद होता हूँ, उसके बारे में उन्हें पता होता है। वो कभी भी मुझे इतनी रात घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। मैंने घड़ी की तरफ देखा जहाँ रात के 12 बज रहे थे। मैंने उसे कहा, यार अभी इतना वक्त नहीं गुजरा, बस 12 ही बज रहे हैं। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि तुम्हारे लिए ये ज़्यादा वक्त नहीं होगा, मगर हमारे लिए ये आधी रात होती है। तमाम घर वाले सो गए हैं। अभी मैं भी सोने की तैयारी कर रहा हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ और सिगरेट को भूल जाओ। ये कहकर उसने कॉल काट दी। मेरा खून गुस्से से खौलने लगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका हशर नशर कर दूं। मेरा एक यही दोस्त था जो मेरे साथ सबसे मुखलिस था, लेकिन ये मेरे किसी भी गलत काम में मेरा साथ नहीं देता था और इसी वजह से मुझे उस पर ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था। मैं सोचने लगा कि क्या हो जाता अगर ये मेरे साथ दूसरे शहर चला जाता, क्योंकि मेरे पास मोटर बाइक नहीं थी और ना ही मुझे मोटर बाइक चलाना आती थी। इसी वजह से मैं बहुत बेबस महसूस कर रहा था। बाकी मैं किसी भी लड़के के साथ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मोहल्ले के एक लड़के से मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। मैंने लड़ाई में उसका सर फाड़ दिया था।
इसी वजह से सारे मोहल्ले के लोग मेरे दुश्मन बने हुए थे। कोई भी मुझे देखने के लिए और मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। और जहाँ तक मेरी बात थी तो मुझे भी उनसे गुफ्तगू करने का बिल्कुल शौक़ नहीं था। मैं तो शुक्र अदा कर रहा था कि इन लोगों से जान छूट गई, वरना वो कुछ ज़्यादा ही मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने लगे थे। मैं बैठा यही सोच रहा था कि ना जाने मेरे जहन में क्या आया। मैं घर से बाहर निकल गया और यूं ही चहलकदमी करने लगा। थोड़े ही फासले पर मस्जिद थी, जबकि मस्जिद के करीब ही एक डस्टबिन पड़ी हुई थी। अचानक ही ये मेरी नज़र डस्टबिन के करीब पड़ी हुई एक छोटी सी सिगरेट पर पड़ी, जिसे किसी ने जलाया था लेकिन आधा पीकर छोड़ दिया था। मेरा दिल उस वक्त बहुत बुरी तरह से ललचा रहा था। मैं बस किसी तरह से अपनी तलब ख़त्म करना चाहता था। मैंने वो पी हुई सिगरेट दोबारा से उठा ली। मैंने ये भी नहीं देखा कि ये किसी की झूठी है। मुझे उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तलब मिटानी थी। मैंने अभी वो जलाई ही थी कि अपने नाम की पुकार पर चौंक गया। पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर इमाम साहब खड़े थे, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे कहने लगे, बरखुरदार, खैरियत तो है? रात के इस पहर तुम किसकी झूठी सिगरेट पी रहे हो? जहाँ तक मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम तो बहुत ही ठाट बाट वाले इंसान हो। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मुझे गुस्सा आ गया। साफ जाहिर था कि वो मेरा मजाक बना रहा था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, उसने अपनी जेब से एक सिगरेट की डब्बी निकाली और वो डब्बी उसने मेरे हवाले कर दी। मैं हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इंसान भी सिगरेट पीता है। मुझे अच्छी तरह से याद था कि अभी पिछले हफ्ते ही ये नशे के बारे में खुतबा दे रहा था और उसने उसमें सिगरेट पीने से भी मना किया था, जबकि अब ये अपनी जेब से सिगरेट निकालकर मुझे दे रहा था। मैंने उसे कहा, आप तो बहुत ज़्यादा चालाक हैं, आपने तो सबको ही बेवकूफ़ बनाया हुआ है। मेरी बात सुनकर वो खुलकर हंसने लगा और कहने लगा, दरअसल तुम एक बार अपना किरदार सबकी नज़रों में पाक साबित कर दो, फिर उसके बाद तुम अंदर खाने जो मर्जी करते फिरो, कोई भी तुम पर उंगली नहीं उठाएगा और ना ही कोई तुम्हारे खिलाफ बात सुनेगा। लोगों की नज़रों में हमारा जो पहला तासुर होता है वही आखिरी होता है। इसके बारे में तो तुमने सुना ही होगा। इमाम मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। इमाम की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और उसे कहा, अब इस बात से मेरा यकीन उठ गया है, क्योंकि पहले मेरी नज़रों में आपका तासुर अच्छा था, लेकिन अब आपका तासुर गलत हो गया है और ये हमेशा गलत तासुर ही रहेगा। वो खुलकर हंसने लगा और कहने लगे, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो तुमने मुझसे शदीद नफ़रत भी करनी है। उनकी बात सुनकर मैंने हैरानगी से उनके चेहरे की तरफ देखा। फिर मैं मुस्कुराने लगा और उन्हें कहा कि आप कोई ऐसा काम ही नहीं करना जिसकी वजह से मुझे आपसे नफ़रत हो, क्योंकि जब मैं एक इंसान के साथ ज़िद बांध लेता हूँ तो फिर उस वक्त तक उस इंसान को नहीं छोड़ता जब तक वो इंसान ज़लील और रुस्वा ना हो जाए। मैं बहुत ही गुरूर से ये बात कह रहा था, जबकि मैं ये बात भूल चुका था कि गुरूर करने वाले का सर हमेशा ही नीचा होता है। बेटा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तुम्हें देखकर यही पता लगता है कि तुम सिर्फ बातें करते हो। जहाँ तक अमल करने की बारी है तो ये सब तुम्हारे बस से बाहर की बातें हैं। बेहतर यही है कि तुम अपने दीन की तरफ तवज्जो दो और अपनी आखिरत को संवारो, इस दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। मैंने उसे कहा, अगर तुमने मुझे ये सिगरेट इस वजह से दी है कि इसके ज़रिए तुम मुझ पर अपना हुक्म चला लोगे और जो दिल करेगा वही कहोगे, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि अब तो मैं किसी भी सूरत तुमसे ये सिगरेट नहीं लूँगा। तुम तो बहुत ही ज़िद्दी और बेवकूफ़ इंसान हो। तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा। अपनी इसी बेवकूफ़ी की वजह से तुम हमेशा अपना नुकसान करते हो। ये कहकर उसने मेरे हाथों से वो सिगरेट ले ली और मुझे कहने लगा, बहुत जल्द तुम मेरे पास आओगे, तब मैं तुम्हें ये सिगरेट दोबारा दूंगा और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने उस वक्त कितनी कीमती चीज़ अपने हाथों से गंवाई है। ये कहकर वो मस्जिद के अंदर चला गया। मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से घूम रहा था। बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका हशर नशर कर दूं।
थोड़ी देर पहले जो मैंने आधी सिगरेट पी थी, उसी वजह से मेरी जिद टूट गई थी और मेरा नशा भी टूट गया था। इसीलिए मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं घर वापस आ गया। मेरे जहन में अभी तक उस मौलवी की बातें गूंज रही थी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने उससे बात करने का फ़ैसला किया था और अब ये फ़ैसला मुझे बहुत भारी महसूस हो रहा था। उसकी वजह से मैं सारी रात जागता रहा और उसी के बारे में ही सोचता रहा। मैंने इरादा कर लिया था कि उसको अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा और उसे बताऊंगा कि उसने मुझे हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी मैं नाश्ता करने के लिए कमरे से बाहर निकला ही था कि अब्बा की आवाज़ सुनाई दी, जो कि बहुत ही गुस्से से मुझे पुकार रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मुझे इतनी ऊंची आवाज़ में पुकारा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। सिर्फ अब्बा ही थे जिनसे मैं बहुत ज़्यादा डरता था और जिनकी मैं हर बात मानता था, वरना अब्बा के अलावा मैं किसी से भी खौफज़दा नहीं होता था। जब अब्बा के पास गया तो वो चंद लम्हे मेरे चेहरे की तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं बेयकीनी से अब्बा के चेहरे की तरफ देखने लगा। अम्मा तेज़ी से भागती हुई आई और अब्बा को पीछे हटाते हुए कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं? जवान बेटे पर क्यों हाथ उठा रहे हैं? इससे गलती हो गई है, इसे माफ़ कर दें। आइंदा ये दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेगा। अम्मा की बात सुनकर अब्बा ने उन्हें भी डांट कर खामोश करवा दिया और कहने लगे, जब तक इसे सज़ा नहीं दूंगा तब तक ये इंसान बाज नहीं आएगा। फिर अब्बा ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा, तुम 3 हफ्तों तक घर से बाहर नहीं निकलोगे। तुम्हारा किसी से भी किसी किस्म का राब्ता नहीं होगा। मैंने बेचैनी से अब्बा की तरफ देखा और उन्हें कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, पहले मुझे बताएं तो सही कि मैंने क्या गलती की है। अब्बा ने दोबारा से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा और मुझे कहा, याद करने की कोशिश करो कि इस पिछले हफ्ते तुमने क्या किया है। और फिर पिछले हफ्ते के सारे वाक़यात मेरी नज़रों के सामने घूमने लगे। मुझे बहुत सारी बातें अच्छे तरीके से याद आ गई थी। अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैंने एक घर में चोरी की कोशिश की थी, लेकिन पकड़े जाने की वजह से उन्होंने हमारे चेहरों को देख लिया था। मगर मेरे एक दोस्त ने चालाकी की, जिसकी वजह से हम वहाँ से भाग निकले। और फिर अगले ही दिन हमने मोहल्ले के चंद लड़कियों को तंग किया था और कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जिनसे हमने नंबर भी मांगे थे। मोहल्ले की सारी लड़कियां ही मुझे अच्छे तरीके से जानती थीं, क्योंकि मेरे अब्बा पूरे मोहल्ले के सबसे अमीर इंसान थे। अगर किसी के पास भी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे ना होते तो वो मेरे अब्बा ना सिर्फ उनकी मदद करते थे, बल्कि हर महीने उन्हें जाकर पूछते भी थे और हर महीने का राशन भी डलवा कर देते थे। यही वजह थी कि मोहल्ले के लोग मुझे कुछ भी नहीं कहते थे, मगर वो मेरी हरकतों से भी बहुत तंग आ गए थे। इसी वजह से उन्होंने अब्बा को शिकायत लगा दी। ये सारी बातें सुनकर मैंने गर्दन झुका दी और अब्बा से माजरत करने लगा, लेकिन अब्बा मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। न जाने उन्हें एकदम से क्या हो गया था। उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम्हारी वजह से मैं मज़ीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं पता कि मुझे पूरे मोहल्ले के सामने कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है। आज सुबह से ही लोग इस घर का चक्कर लगा रहे हैं और तुम्हारी शिकायतें किए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस किस से माफ़ी मांगूं। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे किसी भी किस्म की शर्मिंदगी हो। उसके बावजूद भी मुझे तुम्हारे जैसी गंदी औलाद मिली है, जिसने पूरी बरादरी में मेरी नाक कटवा कर रख दी। अब्बा की बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो वाकई ठीक बात कह रहे थे, मगर मैं क्या करता। बचपन में अम्मा ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। अब जब तक मैं ये काम नहीं कर लेता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता था। मुझे अपनी ज़िंदगी अधूरी लगती थी। इससे पहले कि अब्बा मुझे मज़ीद मारते या मज़ीद बुरा भला कहते, अम्मी दरमियान में आकर खड़ी हो गई और अब्बा को समझाते हुए कहने लगी, क्या हो गया है आपको? जवान औलाद से इस तरह की बातें मत करें, इससे गलती हो गई है।
तो इसे समझाएं बुझाएं। अगर ये माफ़ी मांग रहा है तो इसे माफ़ कर दें। अब्बा अम्मा को डांटने लगे थे और कहने लगे थे कि ये बातें मुझसे करने की बजाय अगर तुम बहुत पहले इससे कर लेती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, मगर तुम्हें तो अपनी ही अय्याशियों से फुर्सत नहीं मिलती। जब भी मैं तुमसे औलाद के बारे में पूछता था तो तुम मुझे यही कहती थी कि कहीं खेल रही होगी। अगर तुम एक बार भी ये देख लेती कि तुम्हारी औलाद कहाँ पर क्या खेल रही है तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अब्बा ये कहकर तेज़ी से कमरे के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वो दोबारा से बाहर आए और मुझे कहने लगे, कल रात तुम 12 बजे घर से बाहर निकलकर कहाँ पर गए थे? उनकी बात सुनकर कल रात का मंजर मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। उस इमाम का चेहरा मेरी नज़रों के सामने आया तो मेरा दिमाग गुस्से से घूम गया। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि अब्बा पूछ रहे थे इस वजह से उनकी बात का जवाब देना ज़रूरी था। मैंने उन्हें कहा कि तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से चहलकदमी करने के लिए घर से बाहर निकल गया। अब्बा ने गौर से मेरे चेहरे को देखा। शायद वो ये टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ कह रहा हूँ। थोड़ी ही देर बाद अब्बा ने मुझसे जो बात की वो बात सुनकर मुझे चंद लम्हों के लिए तो यकीन ही नहीं आया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मौलवी मेरे साथ ये सब कुछ कर सकता है। अब्बा मुझे कहने लगे कि तुमने सिगरेट कब से पीना शुरू की है और तुमने उस मौलवी से सिगरेट क्यों मांगी? मैंने बेचैनी से उनके चेहरे की तरफ देखा और उन्हें कहा कि मैंने उसे सिगरेट नहीं मांगी, बल्कि वो खुद मुझे सिगरेट दे रहा था। अब की बार अब्बा हंसने लगे और कहने लगे, वो इस वजह से कि तुम ज़मीन से आधी पी हुई सिगरेट उठा रहे थे। अब क्या तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो गई है कि तुम लोगों की झूठी सिगरेट पियोगे, या तुमने अपना मयार इतना गिरा दिया है कि तुम कूड़ादान से सिगरेट उठा उठा कर पिया करोगे? मैंने उन्हें कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा कसूर उसी मौलवी का है। आपने मुझे उसके पास पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन उसने मुझे गलत कामों में लगा दिया। उसी ने तो मुझे सिगरेट पर लगाया है और कल इसी वजह से वो मुझे सिगरेट की एक डब्बी दे रहा था। अब की बार अब्बा ने दोबारा से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा और मुझे कहने लगे, नाहंजार बेगैरत इंसान, तुझे शर्म नहीं आती अपने मौलवी पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए? पहले मुझे जितनी भी मार पड़ी थी, इस मार का मुझे दुख नहीं था, बल्कि मुझे पता था कि मेरी गलती है, इसी वजह से अब्बा मुझे मार रहे हैं। मगर अब जब अब्बा ने उस मौलवी की वजह से मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मेरा सब्र भी जवाब दे गया। मैं भी चिल्ला उठा और अब्बा को कहने लगा, जब ध्यान देने का वक्त था तब तो आप लोगों ने मुझ पर ध्यान दिया नहीं। तब तो आप भी बाहर बैठे होते थे और अम्मा को हुक्म दिए जा रहे थे। अम्मा थी कि हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी। उस वक्त जो भी मेरे दिल में आता मैं वही करता। अब जबकि मैं इन सब चीज़ों को आदी हो गया हूँ तो क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आ गए हैं? ये कहकर मैं तेज़ी से घर से बाहर निकल गया, जबकि अब्बा मुझे रोकते ही रह गए। मगर अब मैं रुकने वाला नहीं था, क्योंकि अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अब मैं मज़ीद एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। घर से बाहर निकलकर बेमकसद ही मैं गलियों में चक्कर काटने लगा। मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून नसीब नहीं हो रहा था। न जाने मेरे दिल में क्या आया, मैंने अपना रुख मस्जिद की तरफ कर लिया। मैं चाह रहा था कि उस मौलवी से बात करूं और उसे अच्छी तरह से समझाऊं कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं। तुम्हें बहुत जल्द इस चीज़ का हिसाब देना होगा। मैं जानता था कि जब तक मैं उस मौलवी को गालियां नहीं दूंगा, उसे 3-4 बातें नहीं सुनाऊंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ से बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे थे। यकीनन ज़ोहर की जमात हो चुकी थी। अचानक ही मेरा एक दोस्त मुझे देखकर कहने लगा, अरे तुम गलती से तो यहाँ पर नहीं आ गए? और फिर वो हंसने लगा। उसकी बात सुनकर उसके अब्बा ने उसे डांटा और फिर अपने साथ ले गए। मुझे उस दोस्त के वालिदैन पसंद होते जो छोटी छोटी बात पर अपने बच्चों को टोकते थे। अगर उनके बच्चे कोई गलती कर देते तो पहले उन्हें सज़ा मिलती थी ताकि वो दोबारा कभी भी इस तरह की गलती ना करें।
जबकि मुझे अपना बचपन अच्छी तरह से याद है। जब भी मैं कोई गलती करता तो अम्मी फ़ौरन ही उस गलती पर पर्दा डाल देती थी, या फिर यूं जाहिर करती थी जैसे उन्हें मेरी गलती के बारे में पता ही नहीं। अम्मी कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई थी। उन्होंने हमें कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे रखी थी, और उसी आज़ादी का गलत फैसला उठाकर ही मैं इस हाल में मौजूद था। जब अंदर गया तो वो मौलवी एक जगह पर बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। रात के वक्त जब मैं सोने के लिए लेटा तो अचानक ही उस सिगरेट की डिब्बी मेरी नज़रों के सामने घूमने लगी। मुझे याद आया कि यह सिगरेट कोई आम सिगरेट नहीं बल्कि नशे वाली सिगरेट थी। उसे मैं एक लंबे अरसे से तलाश कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से सुन रखा था कि बहुत ही मज़े की है, मगर तलाश के बावजूद ये मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी। कल रात मैंने इतना अच्छा मौका अपने हाथों से गंवा दिया था। खैर, अब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। उसने जब एक नज़र मेरे चेहरे की तरफ देखा तो मुस्कुराने लगा और मुझे कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम इस वक्त गुस्से में हो, और तुम्हें गुस्से में देखकर मुझे खुशी भी महसूस हो रही है। मेरा दिमाग गुस्से से घूमने लगा। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी हकीकत के बारे में मैं सबको बता दूंगा कि तुम नौजवान बच्चों को नशे वाली सिगरेट पर लगाते हो। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं इसके अलावा भी बहुत से काम करता हूँ, तुम्हें उनके बारे में भी पता लगाना चाहिए, हो सकता है कि उससे तुम्हारा फ़ायदा हो जाए। वो वहाँ से जाने ही लगा था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो मुझे कहने लगा, अभी और इसी वक्त मेरा हाथ छोड़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर मैं उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसे कहा कि पहले बैठकर मेरी बात सुनो और मेरी बात को अच्छी तरह से समझो। मुझसे वादा करो कि दोबारा तुम कभी भी मेरे मामलात में टांग नहीं अड़ाओगे। अगर तुम मुझे इस बात की यकीन दहानी कराते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तुमने दोबारा से किसी भी किस्म की चालाकी करने की कोशिश की या मेरे अब्बा को मेरे बारे में शिकायत लगाने की कोशिश की तो तुम्हें पूरे इलाके में बदनाम कर दूंगा। मैंने उसे सख्त अल्फाज में धमकी देते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, देखो तो एक छोटा सा चूहा बिल्ले को धमकी दे रहा है। बेटा, तुम जितनी मर्जी चालाकियाँ क्यों ना दिखा दो, लेकिन तुम हो एक छोटे और कमज़ोर लड़के। तुम्हारी उम्र इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 17 साल है, और 17 साल की उम्र में ही तुम एक ऐसे शख्स से पंगा ले रहे हो जो अपनी ज़िंदगी के 45 साल गुजार चुका है और जिसका तजर्बा तुमसे कहीं ज़्यादा है। बेहतर यही है कि अपने घर जाओ और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। इस तरह के कामों में मत पड़ो, वरना तुम ख़राब हो जाओगे। मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, इसी वजह से तुम्हारे बाप से बात की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मेरा तुमसे कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं कि तुम मेरी फ़िक्र करते फिरो। वो मुस्कुरा दिया और बोल उठा कि रिश्ता तो तुम्हारे साथ बहुत ही मजबूत है, लेकिन इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलो। मैं वहाँ से निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। अचानक ही उस कमरे के अंदर एक और शख्स दाखिल हुआ। वो हमारे इलाके का सबसे बड़ा चुगलखोर था। हम दोनों को देखकर वो पूछने लगा कि क्या हो गया, बहस क्यों कर रहे हो। अचानक ही मौलवी बोल उठा, दरअसल बच्चे को सिगरेट का नशा लग गया है, बस इसका वही नशा छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है कि तुम जब भी किसी को नसीहत करते हो तो वो तुम्हारी नसीहत को मान लेता है। अब ज़रा इसको भी समझाओ। ये कहकर वो मौलवी वहाँ से चला गया, जबकि मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब ये खबर पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। पहले इस बारे में सिर्फ मेरे दोस्त और उस मौलवी को और मेरे बाप को पता था, लेकिन मुझे यकीन था कि थोड़ी ही देर में सबको पता चल जाएगा कि मैं अब्बा से छुपकर सिगरेट पीता हूँ। मामूली सिगरेट नहीं, बल्कि नशे वाली सिगरेट। वो आदमी तेज़ी से मेरे पास आया और मुझे अपने पास बिठाते हुए नसीहत करने लगा। मैंने इंतहाई नफ़रत से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसका हाथ झटका और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया।
वो मौलवी कमरे के बाहर खड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे कहा कि बहुत जल्द मैं तुमसे इस चीज़ का बदला लूँगा और सबको बता दूंगा कि तुम नेक इंसान नहीं बल्कि तुम तो एक बहुत बड़े शैतान हो। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जो कर सकते हो कर लो, लेकिन तुम कभी भी मुझे नशर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने मोहल्ले वालों की नज़रों में अपनी बहुत इज्जत बनाई हुई है। वो अपने कमरे में चला गया, जबकि मैं घर वापस चला आया। पूरा दिन आवारागर्दी करने की वजह से अब मुझे शदीद भूख लग रही थी। थकावट की वजह से जिस्म भी टूट रहा था। घर जाकर अम्मा से रोटी मांगी तो अम्मा ने रोटी देने से इनकार कर दिया। हैरत से अम्मा के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन अम्मा मुझसे नज़रें चुरा रही थी। वो मुझे कहने लगी, ये तुम्हारी सज़ा है। अम्मा की बात सुनकर मैं हंसने लगा, इतना हंसा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें कहा, अम्मा कुछ तो खुदा का खौफ कर, अब सज़ा देने का वक्त चला गया है, अब आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। चले मुझे जल्दी से रोटी ला कर दे, मुझे वाकई में बहुत भूख लग रही है। अम्मा मुझे रोटी देने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। उसी वक्त ही अब्बा वहाँ पर चले आए और मुझे कहने लगे, बेटा, औलाद की तरबियत कभी भी ख़त्म नहीं होती। वालिदैन किसी भी मोड़ पर आकर औलाद की तरबियत कर सकते हैं, इसीलिए तुम अपनी फ़िक्र मत करो और अभी और इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। अब्बा ने मुझे डांट कर कमरे में भेज दिया। कमरे के अंदर दाखिल हुआ ही था कि अचानक ही दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ सुनाई दी। पीछे पलट कर देखा तो दरवाज़ा बंद था। खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा लॉक था। ज़ोर से लात दरवाजे पर मारी, लेकिन खुद ही तकलीफ़ महसूस की। शाम तक कमरे के अंदर ही बंद रहा। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और अब्बा को दरवाज़ा खोलने का कह रहा था, लेकिन अब्बा दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। मुझ में अच्छी खासी जान थी, मगर मैं ये दरवाज़ा तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि ये दरवाज़ा एक मखसूस लोहे से बनाया गया था, जिसके अंदर से गोली भी नहीं गुजर सकती। अब्बा चूँकि हमारी बहुत फ़िक्र करते थे और उस ज़माने में अब्बा के काफ़ी दुश्मन भी थे, जिसकी वजह से अब्बा ने ये दरवाज़े हमारी हिफाजत की वजह से बनाए थे। उस वक्त मैं बहुत पुरजोश हुआ और अपने सब दोस्तों को बुला बुला कर ये दरवाज़े दिखाए थे, लेकिन अब मुझे ये दरवाज़े जहर लग रहे थे। बस नहीं चल रहा था कि हर चीज़ ही तोड़ दूं। कमरे के अंदर बैठे हुए मज़ीद थोड़ी देर गुजरी कि अचानक दरवाज़ा खुला। अब्बा कमरे के अंदर दाखिल हुए। वो मेरे पास आए और मुझसे वादा लेते हुए कहने लगे, तुम मुझसे वादा करो कि दोबारा कभी तुम कोई गलत हरकत नहीं करोगे, दूसरों की बहनों की इज्जत करोगे और आते जाते उन्हें तंग नहीं करोगे। अब्बा की बात सुनकर मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और अब्बा को तसल्ली दी कि आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। अब्बा भी मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ से निकल गए। जैसे ही वो वहाँ से निकले, मैं तेज़ी से अम्मा के पास गया। अम्मा अपना सर दोनों हाथों में गिराए बैठी हुई थी और कहे जा रही थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इसे इस बारे में पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं कहाँ जाऊँगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे पता नहीं चलना चाहिए था। अम्मा की बातें सुनकर मैं परेशान हो गया और अम्मा से कहा कि क्या पता नहीं चलना चाहिए था और किसको पता चल गया है। मेरी बात सुनकर अम्मा के वजूद को एक झटका लगा। यूं लग रहा था जैसे वो अभी होश की दुनिया में आई हों। वो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी और कहने लगी, अरे नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बस यूं ही खुद से बातें कर रही थी। तुम मुझे बताओ कि अब्बा राज़ी हो गए हैं? उनकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया, जबकि उनका मुंह हैरत से खुल गया और मुझे कहने लगी, क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मेरे माथे को चूमते हुए कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, बचपन में मैंने तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं दी और मैं इस पर बहुत शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अब दोबारा कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बल्कि अपने बेटे के करीब हो जाऊंगी और तुम्हें हर तरह से खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। अम्मा की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मुझे सीने से लगाया था और मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। पहली बार ममता को महसूस किया था, इसी वजह से बहुत खुशी मिल रही थी।
उस दिन के बाद अम्मी मेरा ख्याल रखने लगी। मैंने भी तमाम बुरे काम छोड़ दिए थे, लेकिन एक बात थी जो अभी भी मेरे जहन में फंसी हुई थी, और वो ये थी कि बस किसी तरह से उस मौलवी को फंसाना है और सबके सामने उसकी हकीकत लानी है। चूँकि अब सारे बुरे काम छोड़ दिए थे, मोहल्ले वाले भी मुझे पसंद करने लगे थे, कोई भी मेरी शिकायत नहीं लगाता था। इस वजह से अम्मा ने दोबारा से मुझ पर एतबार करना शुरू कर दिया था। मगर उन दिनों एक ऐसी बात हुई कि जिसके बाद मेरी दुनिया ही उलट गई। अब्बा का अचानक ही एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। अब्बा के इंतकाल की खबर मुझ पर बहुत भारी थी। कई दिन तो मुझे संभलने में लगे, मगर मुझे जल्द ही खुद पर काबू करना था, क्योंकि अम्मा को मेरे अलावा कोई भी संभालने वाला नहीं था। फिर मैंने जल्द ही अपने आप को संभाल लिया और फिर उसके बाद घर की जिम्मेदारी भी उठा ली। अब मैं बहुत ज़्यादा समझदार हो गया था। ना सिर्फ सब दुकानों और स्टोर को देख रहा था, बल्कि उसके अलावा घर के मामलात भी देख रहा था। अब घर के अखराजात मेरे सर पर आ गए थे, तो मुझे पता चल रहा था कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जहाँ तक बड़े बहन भाइयों का सवाल था, तो अभी भी वो यूं ही हमसे अलग थलग थे जैसे पहले थे। उनके पास अच्छी नौकरियां और घर मौजूद थे। इसी वजह से उन्हें अब्बा की जायदाद से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने वो सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया। पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसी वजह से मैं दोबारा से गलत संगत में पड़ गया और अपनी रातें रंगीन करने लगा। एक बस्ती थी जो बहुत ही मशहूर थी। एक दिन मैं वहाँ से अपनी रात रंगीन करके निकल रहा था कि अचानक ही मेरी नज़र इमाम साहब पर पड़ी, जो उस वक्त एक तवाइफ के घर से निकल रहे थे। मैंने जल्दी से उनकी वीडियो बनाई और मोहल्ले के ग्रुप में शेयर कर दी। फिर क्या था, हर जगह ही इमाम साहब पर थू थू होने लगी। लोग उनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था। उसके बाद दोबारा मेरा सामना उस दिन इमाम साहब से हुआ, जिस दिन मैं घर वापस आ रहा था। लेकिन जब घर गया और अपनी बहन को रोते हुए पाया, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और अपनी बहन की बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो। मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम्हें आधी वीडियो मिली थी, पूरी वीडियो इंटरनेट पर चढ़ गई है। उसने मुझे बताया कि इमाम साहब उस वक्त जिस औरत के घर से निकल रहे थे, उस औरत की तस्वीर भी नेट पर मौजूद है। मैंने जब उस औरत को देखा तो मुझे लगा सातों आसमान मेरे सर पर गिर गए हों। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी। उस दिन मुझ पर यह राज भी आश्कार हुआ कि अब्बा की गैर मौजूदगी में मेरी अम्मा इस तरह के चक्करों में फंस गई थी और फिर उस बस्ती में ज़्यादातर वक्त गुजारने लगी थी और अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करने लगी थी। उसी बस्ती में उसका सामना इस शख्स से हुआ था। उस दिन मुझे ये भी पता चला कि मैं किसी और की नहीं बल्कि उस इमाम मस्जिद ही की औलाद हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं हर चीज़ ख़त्म कर दूँ। मुझे अपने बाप के इतने बड़े ज़र्फ़ पर भी रोना आ रहा था, जो सब कुछ जानते बूझते हुए भी ना सिर्फ मेरी परवरिश कर रहा था, बल्कि उसने मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक नाजायज़ औलाद हूँ। जहाँ तक अम्मी का सवाल था, तो अम्मी भी पूरे इलाके में बदनाम हो गई थी। मुझे तो वैसे भी अब अम्मी की तरफ देखने का भी दिल नहीं करता था। अम्मी को भी हमारी ज़्यादा परवाह नहीं थी। वो तो अब्बा के मरने का इंतज़ार कर रही थी। उनके इंतकाल के बाद वो जल्दी से उस इंसान के पास चली गई और उससे निकाह कर लिया। मेरा अब इस मोहल्ले में रहना दुश्वार हो गया था, क्योंकि मुझसे लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती थीं। मेरे साथ मेरी 2 छोटी बहनें भी थीं, जिनकी अभी लंबी ज़िंदगी पड़ी थी। अपने बहनों के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर मैं उस इलाके से निकल आया। मैंने दूसरे इलाके में घर ले लिया। उस घर को मैंने बेच दिया और जहाँ तक मेरी दुकानों का सवाल था, तो वो दुकानें भी मैंने दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा दी थी। मुझे थोड़ा सा अरसा लगा इन सब से निकलने में। फिर एक दिन मुझे एक बहुत ही अच्छी लड़की मिली। थोड़े अरसे बाद मैंने उससे निकाह कर लिया। उसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी संवर गई। उसने मुझे कभी भी किसी भी किस्म की शिकायत नहीं होने दी। वो मेरी बहनों का भी बहुत ख्याल रखती थी और इसके अलावा वो मुझसे भी बहुत मोहब्बत करती थी।
جب میری بہنیں 18 سال کی ہوئیں تو میں نے ان دونوں کی اچھے گھروں میں شادی کر دی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری بہنیں بہت سمجھدار ہو گئی ہیں اور اپنا گھر سنبھال سکتی ہیں۔ مجھے اپنے فیصلے پر بعد میں افسوس بھی نہیں ہوا، کیونکہ اب وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہیں۔